Good morning, class 6 students. Welcome back to online class. Today we will study computer. So open your computer book, page number 13, chapter number 2. Open your computer book, page number 13, chapter number 2, Internet Services. Okay, page number 13, chapter number 2, Internet Services. So through this video, we will learn how to connect to internet, requirement of internet, types of internet connections, uses of internet, internet services, how to create email account, composing and sending emails, and what is video conferencing and how to do this video conferencing and all, and what is chatting and internet calling. Okay, so many more things are in this chapter. So students, be attentive and listen and watch this video very carefully. Okay, so good morning क्लास 6 स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो क्लास में। आज की वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर। मेरे साथ अपनी कंप्यूटर की बुक खोलिए, पेज नंबर 13, चैप्टर नंबर 2, इंटरनेट सर्विसेज। और इस चैप्टर से हम लोग सीखेंगे कैसे इंटरनेट सर्विसेज क्या है, क्या क्या इंटरनेट सर्विसेज हैं, इंटरनेट सर्विसेज में क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ कनेक्शन क्या है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट सर्विसेज में यूज करके हम लोग कैसे ईमेल अकाउंट खोल सकते हैं, कैसे कंपोजिंग और ईमेल को सेंड कर सकते हैं, कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, और चैटिंग क्या है, वीडियो कॉलिंग या वीडियो चैटिंग क्या है, या इंटरनेट कॉलिंग क्या है। ये बहुत सारी चीजें हैं हमें सीखने के लिए, तो इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा। सो प्लीज इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और बहुत अटेंटिव रह के इस वीडियो को देखिए और सारी चीजों को सीखिए। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो क्लास को। Okay, now students, so today we will just read this chapter, and what you will do, you will just repeat after me. देखिए स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग इसको रीड करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे और उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, और आपको साथ ही साथ मेरे पीछे पीछे बोलना भी है। जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ, जैसे रिपीट आफ्टर मी करा रहा हूँ आपको, मैं पढ़ूंगा और आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, सो दैट यू विल प्रोनाउंस वेरी करेक्टली। ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, इंटरनेट सर्विसेज। इंटरनेट सर्विसेज, repeat after me, internet services. Yes, very good. When we talk about the term internet, we can think of hundreds of millions of people connects worldwide accessing the internet from different areas of the world. There is no doubt that internet has made our life easier, more convenient. We can use internet to search information on any topic, communicate with people around the world, do businesses, make new friends, and know different culture, etc. The services provided by the internet are endless. Internet services enable the user to access and gain information through the user of the internet. Let us learn some of the most common internet services. However, before availing the services provided by the internet, it is important to first get connected to the internet. Requirements of the internet connection. Requirements for the internet connection. The requirements for getting an internet connection
are a good quality, high speed computer, a modem, a telephone line or cable. Now, next page. An account with any one internet service provider, ISP, software for accessing to internet. Types of internet connection. Several types of internet connections exist that enable us to connect to the internet. Dial-up connection. It is the traditional method of connecting to the internet. A dial-up connection means that we use our existing telephone line to connect to an outside internet service provider, which in turn connects us to the internet. We cannot use the telephone line for the purposes while we are accessing the internet. It is the slowest method of accessing the internet, and it's commonly found in use in areas where high-speed internet access is not available, but telephone services is. Broadband connection. The term broadband refers to an internet connection that offers a high-speed internet access and high data transfer rate. In broadband connection, the computer remains continuously connected to the internet through an existing telephone line. Broadband services are often referred to as always-on services because it is not necessary to make a setup call to our ISP each time we wish to access the internet. Broadband connections are offered in 4 different forms: digital subscriber line DSL, cable internet, wireless connection, and satellite connection. Okay, so for today we will read just here till here. Okay, हम लोग यहाँ तक फिनिश करेंगे. आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक फिनिश करेंगे, and in the next class we will read the rest part. Okay, so now I'm going to explain this in Hindi. हम इसको explain कर रहे हैं हिंदी में, so listen very carefully. Okay students, so when we talk about the term internet, we think of hundreds of millions of people connected worldwide accessing the internet from different area of the world. जब भी हम ये बात करते हैं इंटरनेट की, तो हम ये बात सोचते हैं या हमें ये सोचनी चाहिए कि पूरी दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों कंप्यूटर या फिर लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है इंटरनेट के द्वारा से, डिफरेंट एरिया से, अलग अलग जगहों से. ओके, देयर इज नो डाउट द इंटरनेट हैज मेड आवर लाइफ इजियर एंड मोर कन्वीनियंट. और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी लाइफ इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट की वजह से बहुत आसान हो गई है
और बहुत ही कन्वीनियंट हो गई है, सरल हो गई है, बहुत ही आरामदायक हो गई है। ठीक है, कैसे? देखिए, जैसे कि हमें कोई सामान खरीदना होता है, हम चाहें तो इंटरनेट से चीजें खरीद सकते हैं और वो डायरेक्टली हमारे घर पर पहुंच जाएंगे, हमको दुकान तक जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग को किसी से बात करनी है, हम इंटरनेट के द्वारा से कॉल कर सकते हैं। हमें कोई मैसेज भेजना है, जैसे अभी वीडियो क्लास हो रही है, हम अभी वीडियो आपको भेजेंगे तो ये इंटरनेट के माध्यम से भेजेंगे। सो ये कन्वीनियंट हो गया है, ये इजी हो गया है आप सभी के पास पहुंचना, और आप अपने घर में बैठे बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं, है ना? We can use internet to search information on any topic, communicate with people around the world, do businesses, make new friends and know different cultures, etc. देखो, इंटरनेट के माध्यम से हम लोग बहुत सारी चीजें जान सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, हम किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और उनको जान सकते हैं। हमें अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं। पहले के जमाने में जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था तो किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन लेने के लिए उससे रिलेटेड बुक खरीदनी पड़ती थी। बुक खरीदने के बाद काफी महंगी, अगर अब कोई वास्ट टॉपिक है तो महंगी बुक मिलती थी और बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलता था, रिलेटेड पिक्चर्स भी बहुत कम होती थी। लेकिन आज इंटरनेट के दौर में आज हम लोग इंटरनेट के माध्यम से रिलेटेड पिक्चर्स, रिलेटेड वीडियोस और कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग वीडियोस के माध्यम से, वीडियोस के टॉपिक से, वीडियोस के सेंस से, या फिर पिक्चर्स के सेंस से, या फिर लिखा हुआ सेंस में आपको मिल सकता है। मतलब आप किताब के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में या फिर टेक्स्ट के फॉर्म में आप चीजों को पा सकते हैं, इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। और इंटरनेट के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप है और भी वीडियो कॉलिंग एप्स हैं, उनके द्वारा से पूरी दुनिया में हम कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं। पहले क्या होता था कि इंटरनेट के, मतलब इंटरनेट जब नहीं था उससे पहले होता यह था कि अगर आपको किसी जगह कॉल करनी है तो आईएसडी कॉल लगती थी, जो कि चार्जेस बहुत महंगे होते थे। अगर विदेश में कहीं कॉल करनी है तो उसका चार्ज बहुत महंगा होता था और बड़ी मुश्किल होती थी कॉल करना, बात करना। अगर आपके किसी फ्रेंड्स या कोई लोग आपके रिलेटिव्स बाहर में हैं तो बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन आज जब इंटरनेट एकदम इजी हो गया है तो आज हम लोग बहुत सारे माध्यम से, व्हाट्सएप के द्वारा से या फिर किसी और तरीके से हम इंटरनेट कॉल कर सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी, और बात कर सकते हैं। आज बिजनेस करना इजी पड़ गया है, कहीं भी आराम से हम बिजनेस कर सकते हैं, हम नए दोस्त बना सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को वीडियोस में या फिर टेक्स्ट के या बुक्स के माध्यम से हम जान सकते हैं। ठीक है, द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट आर एंडलेस। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरनेट के द्वारा से हम कर सकते हैं, एंडलेस है, एकदम खत्म ही नहीं होती, खत्म नहीं हो सकती, इतनी ज्यादा सर्विसेज हैं इंटरनेट के द्वारा से हम करने के लिए। Internet services enable the user to access and gain information through the use of the internet. और इंटरनेट सर्विसेज जो है वो एनेबल करती है हमें इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी सर्विसेज को यूज करने के लिए, बहुत सारी चीजों को करने के लिए। लेट अस लर्न सम मोस्ट कॉमन इंटरनेट सर्विसेज। चलिए हम लोग जानते हैं कि कुछ मोस्ट कॉमन इंटरनेट सर्विसेज क्या हैं। However, before availing the service provided by the internet, it is important to first get connected to the internet. देखो, ये सारी चीजें पाने के लिए हमें सबसे पहले इंटरनेट से कनेक्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले तो इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तभी तो हम इंफॉर्मेशन गेन कर पाएंगे, ले पाएंगे। ठीक है, सो रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। अब इंटरनेट कनेक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेंगी। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर से इंटरनेट कनेक्शन करते हैं तो क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेंगी। वैसे मोबाइल में तो बस सीधे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और फिर डेटा ऑन कर देते हैं तो काम हो जाता है, या स्क्रॉल अप करके डेटा ऑन कर लेते हैं, काम हो जाता है। बट कंप्यूटर्स में कुछ क्या क्या चीजें लगेंगी आपको इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए, यहाँ पे बताया गया है। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गेटिंग एन इंटरनेट कनेक्शन आर गुड क्वालिटी हाई स्पीड कंप्यूटर। एक अच्छी क्वालिटी का हाई स्पीड कंप्यूटर होना चाहिए। ए मोडेम, एक मोडेम होना चाहिए। मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये क्या है, एक डिवाइस है जिसके द्वारा से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को हम लोग भेजते हैं। मतलब कि ये मॉड्यूलेट करता है एनालॉग सिग्नल्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में। इस चीजों को हम बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नाउ थर्ड इज टेलीफोन लाइन या केबल। ये टेलीफोन लाइन चाहिए या केबल चाहिए। आज तो वायरलेस के माध्यम से भी हम कनेक्ट हो सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट इज एन अकाउंट विद एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का अकाउंट होना चाहिए, जैसे कि कोई सिम होनी चाहिए। आजकल तो सिम के द्वारा से हम लोग इंटरनेट कनेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना है तो आप जिस कंपनी का जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसका ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले सकते हैं। हमारे यहाँ तो जियो और एयरटेल दोनों का ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, हम लोग ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट। और सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके द्वारा से हम इंटरनेट पे एक्सेस कर पाएं, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स, मतलब जो भी, या यूट्यूब का अपना एप्लीकेशन है, अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस टाइप के एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये है मोडेम, ये है वायर केबल जिसके द्वारा से हम कनेक्ट होंगे मोडेम में। और फिर ये सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर के द्वारा से, ये तो आप पहचान ही रहे होंगे, गूगल क्रोम है ये, तो इसके द्वारा से हम इंटरनेट में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, देखिए अब कनेक्शंस, टाइप्स ऑफ कनेक्शंस, अब कई सारे टाइप्स ऑफ कनेक्शंस है, कई टाइप के कनेक्शन है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कौन कौन से टाइप ऑफ कनेक्शन है। देखिए ऐसे बहुत सारे टाइप ऑफ कनेक्शंस हैं, जिसमें हम लोग कुछ ही कनेक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। Several types of internet connection exist that enable to connect to the internet। बहुत सारी इंटरनेट सर्विसेज हैं या फिर इंटरनेट कनेक्शंस हैं जिसके द्वारा से हम इंटरनेट में कनेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट इज डायल अप कनेक्शन। ये पुराना मेथड था। इट इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। ये डायल अप कनेक्शन है, इसके द्वारा, ये पुराना मेथड था, ये ट्रेडिशनल मेथड है जिसके द्वारा से हम इंटरनेट में कनेक्ट हो सकते हैं। ए डायल अप कनेक्शन मीन्स that we use to existing telephone line to connect to an outside internet service provider which turn connects us to internet। अब ये टेलीफोन लाइन के द्वारा से हमको अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करना होगा टेलीफोन लाइन, और इसमें डायल अप करना होगा, और फिर उसके द्वारा से वो टेलीफोन लाइन, टेलीफोन सर्विसेज के द्वारा से हम इंटरनेट सर्विस ले सकते हैं। ये पुराना मेथड था। We cannot use the telephone line for other purpose while we are accessing the internet। और ये एक मेथड में एक प्रॉब्लम ये थी कि हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो फिर टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। अगर कॉल आई तो कनेक्शन क्लोज, ये मेथड ये पहले हुआ करता था। इट इज द स्लोएस्ट मोड ऑफ एक्सेसिंग द इंटरनेट एंड कॉमनली फाउंड in use in the area where high speed internet access is not available but telephone services is। ये उन जगहों के लिए अच्छी है, ये उन जगहों पे इस्तेमाल की जाती हैं जहां पर हाई स्पीड इंटरनेट की सर्विस नहीं है लेकिन वहां पे टेलीफोन लाइन है, तो टेलीफोन लाइन के माध्यम से हम इंटरनेट सर्विस ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इसकी सबसे बुरी बात यह है कि ये स्लोएस्ट मेथड है, सबसे स्लो काम करता है, ये बहुत धीरे धीरे इसकी स्पीड है। तो ये पुराना कनेक्शन था। आज भी बहुत सारे देश में इस डायल अप कनेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे देश में अब डायल अप कनेक्शन जनरली खत्म हो चुका है। अब इसके बदले हम लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लेते हैं। तो ये पुराना मेथड था। नाउ नेक्स्ट इज ब्रॉडबैंड कनेक्शन। द टर्म ब्रॉडबैंड रेफर्स टू एन इंटरनेट कनेक्शन that offers an high speed internet access and high data transfer rate। ब्रॉडबैंड कनेक्शन के द्वारा से हम हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं। तो देखो ये डायल अप कनेक्शन थोड़ा स्लो था, तो ब्रॉडबैंड में ये बहुत फास्ट है, इसमें डेटा ट्रांसफर रेट बहुत ज्यादा है, तो आप कोई भी वीडियो को डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं। जबकि डायल अप कनेक्शन से अगर आप कोई वीडियो प्ले करेंगे तो यूट्यूब में घूमेगा, पहले बफिंग होगी फिर उसके बाद वीडियो प्ले होगा। जबकि ब्रॉडबैंड कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन भी थोड़ा स्लो, इतना फास्ट नहीं है, मतलब उतना स्लो नहीं है, बट ब्रॉडबैंड कनेक्शन के कंपैरिजन में वो बहुत स्लो है। नाउ ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या है? वो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है और इसमें डेटा ट्रांसफर रेट बहुत ज्यादा है, एकदम स्पीड पे चलेगा, एकदम फुल एचडी वीडियो को भी आप आराम से देख पाओगे। In broadband connection, the computer remain continuously connected to the internet through an existing telephone line। और इसमें क्या होता है कि इसमें एक टेलीफोन लाइन के द्वारा से कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया जाता है इंटरनेट से, और वो कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रहता है, इसमें कॉल आए ना आए इस वाला झंझट नहीं है। ब्रॉडबैंड सर्विसेज आर often referred as an always on service because it is not necessary to make setup call to our ISP each time we wish to access the internet। अब देखो ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है वो ऑलवेज ऑन है, मतलब प्लग एंड यूज वाला ये कनेक्शन है, बस आपको बस प्लग करना है और काम करना शुरू हो जाइए, तो ऑलवेज ऑन है। इसमें आपको डायल अप नहीं करना पड़ता है, सेटअप नहीं करना पड़ता है आईएसपी से बार बार, जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो सेटअप नहीं करना पड़ता है। बल्कि डायल अप कनेक्शन में ऐसा होता था कि आपको सेटअप करना होगा आईएसपी से, उसको कॉल करके उसको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, मतलब डायल अप करना होगा
तब जाके इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो पाएंगे, उसके बाद होगा। अगर वहां पे डायल अप में बहुत ज्यादा भीड़ है तो फिर आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा, ऐसा होता था। लेकिन ब्रॉडबैंड में ऑलवेज ऑन है, बस आप बस प्लग कीजिए और फिर स्टार्ट हो जाइए। तो इस ब्रॉडबैंड कनेक्शन आर ऑफर्ड 4 डिफरेंट फॉर्म्स। ब्रॉडबैंड कनेक्शन के भी 4 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, अलग अलग टाइप के हैं। तो इसमें है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डीएसएल, केबल इंटरनेट, उसके बाद वायरलेस कनेक्शन, सैटेलाइट कनेक्शन, ऐसे 4 टाइप के कनेक्शंस मिलते हैं डायल अप में, वो सॉरी ब्रॉडबैंड में। ठीक है, तो आज की वीडियो क्लास भी बहुत बड़ी हो गई है, 20 मिनट्स का हो चुका है। तो आज की वीडियो क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम इसके आगे के सारे डायल अप सारे जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उनके बारे में बताएंगे, वो कैसे कनेक्ट करते हैं और किसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, इसको हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स। वैसे बहुत सारी चीजें हैं इसमें पढ़ने के लिए, हमें देखिए ईमेल अकाउंट बनाना सीखना है और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें करने के लिए। सो एक्टिव रहिएगा, चीजों वीडियोस हमेशा आती रहेंगी और उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो बहुत ज्यादा है, इंटरनेट का कॉलिंग चैटिंग वगैरह भी है इसमें, काफी कुछ बताया गया है। और फिर हम लोग लास्ट में एक्सरसाइजेस करेंगे। एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने के बाद हम लोग ये पूरा फिनिश करेंगे। इसके बाद भी लैब प्रैक्टिस भी है, तो इसमें हम लोग ईमेल अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, सो दिस इज फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड बी सेफ। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।